Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So today in this session, we are going to discuss the case study. As we have already known that the case study is very important for the CIB exam, especially Bank Financial Management BFM. And nowadays, IIBF is asking mostly the case study related questions. So today in this session, we are going to discuss regarding the net interest income. So this topic is very important. So I am Sumant. Let's start the session for today. So just read the question before we have started all those things and simultaneously try to answer this, right? So ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो क्वेश्चन को है अंडर 1 by 1 जो एक केस स्टडी है, सो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको जानना जरूरी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो सम important definitions. So let's start it. The question is like that: international bank raised fund by way of 182 days term deposits at 7% rate of interest. It has following option to invest these funds. That means one bank is there who has raised the fund, जो कि fund raise करता है by the way of 182 days term deposits. So there is some investment opportunity, that is term deposits which are 182 days, whose validity is for 182 days, right? And what's the interest rate for that term deposit? That is 7%, right? So as we know, what do you mean by the term deposits? That means those deposits who are having a particular time period. So that those are known as term deposits, right? So here the interest rate is fixed at 7% rate of interest. Then the next one is it has following options to invest these funds. So the same bank has some other options to invest these funds, right? Because you know, in case of deposits, we got some deposits, that means we got some public money. What happening in this is term deposits, that means this is FD. So in case of FD, what happening, so this is customer, so ये रहा हमारा बैंक और ये रहा some third party, ठीक है। So customer is doing deposits with the bank, that means in the form of FD. So this is FD and term deposit, these are the form of FD, and bank is holding all those money or cash of the customers, and they are investing all those money to another in other investment opportunities, so that they are also getting some interest. Like a bank is getting, we are just taking, bank is getting 8%, so now they are paying something 6%. So here we can say the net interest income is 2%, ठीक है। बिकॉज बैंक का इनकम कितना हो रहा है 8% उसको इन्वेस्टमेंट करने पर, और उनको कितना देना पड़ रहा है कस्टमर को 6%। सो इसको 8% से हम 6% को माइनस कर लेंगे तो बैंक को कितना मिल रहा है। सो दिस इज आपका जो NII है आपका यहाँ पर जो है ना 2%, ठीक है। सो डिपोजिट्स का हम नॉर्मली वही करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए जो डिपोजिट्स हो गया, तो ये जो डिपोजिट्स हो गया हमारा जो बैंक के लिए हमारा क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। एंड एसेट हमारा क्या है विथ रेस्पेक्ट टू द बैंक, बैंक के लिए एसेट है हमारा लोन्स, दैट इज ऑल द क्रेडिट्स एंड एडवांसेस, दोज आर ऑल द लोन्स आर assets. That means we are getting some income from those things, that is interest. What are the income in case of loan? This is interest income, ठीक है। and in case of deposits, that means we are giving back some this is some types of our expense, that means we are giving back some amount to the customer, that is in the form of interest, right? That's why liability. And what do you mean by that liability? As we have already studied in case of JIB completely, that means whenever customer demands, the bank need to give back all those things back to the customer, right? सो होपफुली यहाँ पर आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी था बैंक के पास, कौन सा फंड है। फर्स्ट है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि 182 डेज ट्रेजरी बिल में वो इन्वेस्ट करने के लिए, जिसका परसेंटेज है 9%, और एक है कमर्शियल पेपर 182 डेज वाला कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करने के लिए एट द फ्लोटिंग रेट मतलब at the rate of 9%. That means that interest rate will be variable.
ठीक है, ये आज 9% है तो ये चेंज भी हो सकता है। सो एट द फ्लोटिंग रेट ऑफ 9%, ठीक है। सो अभी हमारा जो लोन हम देते हैं दैट इज फ्लोटिंग रेट, हमारा जो BRLLR के ऊपर डिपेंड होता है। सो उसको हम नेक्स्ट में कभी सेशन में कम, मतलब बस आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। अभी जो हम लोन कर रहे हैं दैट इज अभी क्या हो रहा है, रेपो बेस्ड हो गया है, ठीक है। अंडर रेपो आपका हमारा जैसे कि पता है कि मॉनिटरी कमिटी आता है एंड क्वार्टरली उसको चेंज कर लेता है। सो इसीलिए अभी हमारा फ्लोटिंग रेट अप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो विथ मंथली रिप्राइसिंग, तो ये देखिए सब क्या है, ये जो कमर्शियल पेपर है इसका मंथली रिप्राइसिंग होगा। मंथली रिप्राइसिंग मतलब एवरी मंथ ये जो परसेंटेज है ये चेंज होगा या कम होगा या ऊपर होगा, ठीक है। सो 182 डेज, 182 डेज मतलब देखिए आज हुआ स्टार्ट, सो उसके बाद 30 डेज हुआ, उसके बाद और एक 30 डेज हुआ, यहाँ पर कितना हुआ गया 60 हो गया, यहाँ पर 30, यहाँ पर हो गया हमारा और 60, और यहाँ पर हो गया हमारा, सबका हम 30 ले रहे हैं, ठीक है। सो दैट ये 60, ये हो गया और 30, दैट मीन्स ये 90, ये हो गया 120 एंड यहाँ हो गया 180, ठीक है। सो ये 60 हो गया, ये आपका हो गया 90। देखिए यहाँ पर 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, मंथली हो रहा है, 30 डेज को हम पकड़ेंगे। सो 122 180, देखिए 1 2 3 4 5, तो कितना टाइम हो गया हमारा 5 टाइम्स रिप्राइसिंग हुआ, ठीक है। सो दैट मीन्स ये 182 डेज के अंदर हमारा कितना टाइम रिप्राइसिंग हो रहा है 5 टाइम्स। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा हेल्प होगा, ठीक है। सो यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वी नीड टू नो कि व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेजरी बिल, ठीक है। सो नॉर्मली द ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट, राइट। सो ये जो टी बिल है इसको हम शॉर्टली बोल सकते हैं दैट इज टी बिल। सो ये कौन इशू करता है, दैट इज गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक है। और ये एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, दैट मीन्स लेस देन 1 ईयर होगा, ठीक है। और ये है हमारा शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और इसको हम ये भी बोलते हैं दीज आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और ये 3 फॉर्म में हमारा हो जाता है, जैसे कि 91 डेज एंड 182 डेज, और नेक्स्ट हो जाता है हमारा 364 डेज, बिकॉज लेस देन 1 ईयर दैट मीन 365 से लेस होगा। तो ये 3 फॉर्म से इसको इशू किया जाता है। और ये जो होता है ट्रेजरी बिल का एक क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ट्रेजरी बिल का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये वाला जो है 0 कूपन सिक्योरिटी है, एंड इसमें पे नो इंटरेस्ट, इसमें कोई भी जो ट्रेजरी बिल है देयर विल बी नॉट पेड एनी इंटरेस्ट, ठीक है। सो पे नो इंटरेस्ट। सो ये जो हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और नेक्स्ट हम अगर बात कर ले कि ये वाला जो कमर्शियल पेपर, सो कमर्शियल पेपर का जो डेफिनेशन है, सो इट्स लाइक नो दीज आर द कमर्शियल पेपर्स। So most importantly this is the one form of unsecured. So what do you mean by the commercial paper? So this is one of the unsecured short term debt issued by a corporation. So ये है एक unsecured type of short term debt, unsecured टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म। ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म क्यों है, क्योंकि ये वाला इशू जो होता है लेस देन आपका 1 ईयर के लिए, ठीक है। और बाय कॉर्पोरेशन होता है कमर्शियल पेपर। और इसको जो मेन होता है कि जो हमारा यूज होता है, जैसे कि नॉर्मली इन्वेंटरी के लिए कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हमारा आ गया कोई कंपनी का, देन वहाँ पर उसको फुलफिल करने के लिए जो अगर यूज देखें तो इन्वेंटरी, कोई इन्वेंटरी अगर परचेस करना है या कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आ गया, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए इसको हम यूज किया जाता है। सो इसका जो है आप जो हमारा एग्जाम्पल की तरफ हमारा होता है, जैसे हमारा प्रोविजन नोट होता है, तो दिस इज वन टाइप ऑफ दिस वन ऑल्सो, राइट। सो नॉर्मली ये वाला जो कमर्शियल पेपर एक कंपनी इशू करता है टू रेज फंड्स, ठीक है, फॉर अ टाइम पीरियड अप टू 1 ईयर। सो इसमें अगर कोई कंपनी को शॉर्ट टर्म, वही जो है ना शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी उसको फुलफिल करना है, देन वहाँ पर ये वाला जो है कमर्शियल पेपर के थ्रू में वो अपना जो है फंड रेज करते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है अप टू 1 ईयर, ठीक है। सो चलिए ये वाला थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा। और ये आपका देख रहे हैं 3 इयर्स टर्म लोन एट द, नेक्स्ट हमारा है 3 इयर्स टर्म लोन एट द रेट ऑफ 9%, ठीक है।
सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है इसको देख लीजिए, आप पहले ट्राई करिए, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट एंड लेटर ऑन जस्ट मैच इट द आंसर। ठीक है, चलिए ओके। So here, read the question first. If the bank makes investment in 182 days treasury bills at 9%, so बैंक कहाँ पर इन्वेस्ट किया, चूज किया कि वो यहाँ पर ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करने के लिए at 9% इंटरेस्ट। ठीक है, and during the 182 days period there is 1% increase in interest rate, what will be change in the net interest income on reinvestment after 182 days। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बैंक अभी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग उनका है 182 डेज टर्म डिपॉजिट्स में 7% वो अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अभी फिलहाल ये जो बैंक है चूज किया 182 डेज ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसका इंटरेस्ट रेट है आपका 9%, एट द रेट ऑफ 9% इन्वेस्ट करने के लिए वो चूज किए। और इसमें एक कंडीशन अप्लाइड है कि ड्यूरिंग द 182 डे पीरियड के अंदर वहाँ पर एक इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स जो इंटरेस्ट रेट था उसमें 1% इंक्रीज हुआ। और क्वेश्चन ये पूछा है कि यहाँ पर हमारा जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो उसको कैसे अफेक्ट किया है, क्या चेंजेस हुआ है नेट इंटरेस्ट इनकम में आफ्टर ऑन री इन्वेस्टमेंट आफ्टर 182 डेज। सो यहाँ पर आपका कुछ चेंजेस हुआ है 1% का। सो ये 1% इंक्रीज होने के बाद आफ्टर 182 डेज जब री इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है, सो उस टाइम जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो उसके ऊपर क्या चेंजेस हो सकता है, वही वाला क्वेश्चन जो नेट इंटरेस्ट इनकम हमें पूछा गया है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, एग्जिस्टिंग, फर्स्ट कंडीशन में ये जो है हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट क्या है 7% है आज टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग हम बोल सकते हैं। सो दो हमारा होता है कि हमारा जो मेन पॉइंट है कि इसको हम अगर माइनस कर लेंगे दैट इज समथिंग लाइक जो एन आई आई क्या, अभी आपको जैसे बताया था एन आई नेट इंटरेस्ट इनकम, इसका जो हमारा होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन्स या वट एवर एंड कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स को माइनस कर लेंगे, सो जो होगा वही वाला आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द इंटरेस्ट ऑन लोन एंड दिस इज माइनस कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा लायबिलिटी पार्ट, कॉस्ट ऑफ जो डिपॉजिट है, और ये हो गया हमारा एसेट। गॉट इट। सो यहाँ पर ये वाला हो गया हमारा एग्जिस्टिंग, जो हमारा पहले क्या है एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कितना है, सो एट द रेट ऑफ 7% है। और अभी हमारा कहाँ पर इन्वेस्ट किया, दैट इज मैक्स इन्वेस्टमेंट किया 182 डेज ट्रेजरी बिल्स में। सो यहाँ पर हो गया हमारा एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स, कितना हो गया 9%। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे इसको हम इस ये वाला अगर 1 होगा 2 होगा, सो एन आई आई क्या है जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट से माइनस करेंगे, 9% माइनस 7% कर लेंगे तो हमारा कितना कितना आ रहा है, दैट इज 2% आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या चेंजेस हुआ है 1% इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स जो सेकेंड केस है, सो केस 2 में हमारा ये हुआ है कि ये जो है 7%, ठीक है, यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, सो COD लिख सकते हैं, ये 7% जो था इसमें आपका 1% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन था जो हमारा 2 वाला था इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी हमारा 1% इंक्रीज हुआ है, 9% था तो 1% इंक्रीज हुआ है। सो ये हो गया हमारा 7 + 1 8%, और ये हो गया हमारा 9 + 1 दैट इज 10%। सो यहाँ पर देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम हमारा कितना हो गया, जो नेट इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, सो यहाँ पर आ गया हमारा 10 - 8%। ठीक है, सो यहाँ पर कितना हो गया 2%।
दैट मीन्स देखिए पहले इस जो एग्जिस्टिंग केस में पहले हमारा जो था कितना आ रहा था पहले 2% बिफोर इंक्रीजिंग, आफ्टर इंक्रीजिंग दोनों इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो जैसे जब दोनों इंक्रीज हो गया तो हमारा जो एन आई है जैसे साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता है तो उस केस में हमारा जो है ये 2% ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला कैलकुलेशन से कि एन आई हमारा जो है नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर भी 2% था और यहाँ पर भी 2% है। सो देयर इज नो चेंज इन नेट इंटरेस्ट इनकम, गॉट इट। सो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो होपफुली आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये वाला क्वेश्चन जो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। सो होपफुली आपको याद रखिएगा जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये वाला रहा एसेट जो भी रहेगा इंटरेस्ट एसेट के ऊपर उसको हम माइनस कर लेंगे जो भी हमारा इंटरेस्ट रहेगा लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी मतलब जो हमारा अभी इंटरेस्ट ऑन जो है लोन्स और इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट्स, ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड माइनस कॉस्ट ऑफ डिपोजिट्स। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द बैंक इन्वेस्ट द फंड इन 182 डेज फ्लोटिंग रेट कमर्शियल पेपर, ठीक है। सो नेक्स्ट ये वाला जो केसेस में हमारा ये बोला गया है कि बैंक अभी चूज किया, नाउ बैंक चूज किया कि 182 डेज फ्लोटिंग रेट कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करने के लिए। सो कहाँ पर अभी ऑप्शन नंबर बी में इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक, राइट। सो यहाँ पर अभी इन्वेस्ट कर रहा है दैट इज एट द रेट ऑफ 9% विथ मंथली रिप्राइसिंग। सो मंथली रिप्राइसिंग बारे में तो आपको पता है कि जैसे कि बोला था 5 टाइम्स आपका 182 के अंदर हो जाएगा रिप्राइसिंग 5 टाइम्स। सो देयर इज, सो यहाँ पर ये वाला हुआ कहाँ पर अभी इन्वेस्ट कर रहा है कमर्शियल पेपर में। सो देयर इज इंटरेस्ट रेट राइज। सो यहाँ पर क्या हुआ जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो क्या हुआ राइज हुआ है। देन ये केस में जब इंटरेस्ट रेट राइज होता है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ द बैंक। ठीक है। सो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है मंथली, यहाँ पर क्या है ना जब सो यहाँ पर जो हो रहा है मंथली रिप्राइसिंग, ठीक है। मंथली रिप्राइसिंग के लिए हमारा जो है इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स वो भी चेंज होगा। सो ये जो मंथली रिप्राइसिंग वजह से हमारा जो है इंटरेस्ट रेट ऑन लोन वो भी आपका चेंज हो जाएगा। सो ये कितने टाइम्स चेंज होगा दैट इज 5 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि रिप्राइसिंग जितने बार होगा उतने टाइम हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी चेंज होगा। सो 1 टाइम होगा तो 1 टाइम होगा, पर यहाँ पर रिप्राइसिंग कितना हो रहा है मंथली हो रहा है। एंड 182 में जैसे आपको बताया था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पर आपका 30 डेज, यहाँ पर आपका 60 हो गया, उसके बाद आपका 90 120 150 और नेक्स्ट हो गया आपका 180, ठीक है। सो यहाँ पर एक रिप्रेसिंग हुआ, यहाँ पर एक रिप्रेसिंग हुआ, यहाँ पर एक रिप्रेसिंग हुआ, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। देखिए कितने बार आपका रिप्रेसिंग हो रहा है, आपका 5 टाइम्स ही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका 13 में तो स्टार्ट हो गया ना, तो यहाँ पर तो जो था रिप्राइसिंग तो यहाँ पर हुआ एंड यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर हुआ एंड नेक्स्ट यहाँ पर। सो यहाँ पर आपका फाइनली री इन्वेस्टमेंट होगा। सो ये यहाँ पर रिप्राइसिंग नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर 5 टाइम्स, इसीलिए 5 टाइम्स होता है। सो जितने बार आपका रिप्राइसिंग होगा उतने बार आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑन द जो लोन है वो भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। दैट मीन्स 5 टाइम्स इंटरेस्ट रेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन विल टेक प्लेस, ठीक है। सो चेंज इन इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो टेक प्लेस 5 टाइम्स ड्यू टू द रिप्राइसिंग मंथली इन कमर्शियल पेपर, ठीक है। बट इस केस में ओनली जो है इंटरेस्ट रेट ऑन लोन दैट विल बी चेंज्ड, बट द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट विल नॉट चेंज। सो इस केस में क्या हो रहा है हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो ना आपका कांस्टेंट है, ठीक है। सो ओनली आपका ये जो रिप्राइसिंग है हमारा लोन को अफेक्ट कर रहा है। सो इस केस में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कांस्टेंट है। दैट मीन्स देखिए हमारा जो NII का मतलब क्या है, आपका ये जो है
मतलब मैं लोन लिख लेता हूँ, इसको डिपॉजिट लिख लेता हूँ। दैट मीन्स लोन एंड डिपॉजिट, अगर आपका लोन बढ़ते जाएगा, देखिए ये अगर पॉजिटिव है एंड ये अगर हाईएस्ट है एंड ये अगर लोएस्ट है दोनों, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, हाई में आएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये भी आपका नेट इंक्रीज होगा। सो ये बढ़ते जा रहा है, ये कांस्टेंट ही है। जो यहाँ पर अगर ये 5 है, यहाँ पर 2 था, ये हो गया आपका कितना आ रहा था 3। सो अभी 5 जो है आपका 6 पकड़ लीजिए 8 हो गया। सो 8 2, तो आंसर क्या आ रहा है 4। देखिए 3 to 4 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर बोला गया इंटरेस्ट रेट विल राइज। सो यहाँ पर हमारा पकड़ लीजिए इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, जो भी है नेट जो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। जो अगर इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज किया जाएगा तो लोन के ऊपर हमारे जो बैंक के लिए जो लोन के ऊपर इनकम होता है, लोन से हमारा इनकम ही होता है ना, क्योंकि हम कस्टमर से लोन देते हैं एंड कस्टमर कुछ इंटरेस्ट पे करता है बैंक को। एंड अगर इंटरेस्ट ही इंक्रीज किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर पहले था कितना 6% था, अगर पकड़ लीजिए बैंक को कस्टमर दे रहा था 120 रुपीज़, अगर 7% हो गया तो बैंक को मिलेगा 140 रुपीज़। सो यहाँ पर 20 रुपीज़ का इंटरेस्ट इनकम, ये क्या है INT है, और ये जो है इंटरेस्ट इनकम आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जब इंटरेस्ट इनकम हमारा इंक्रीज होगा, उस केस में हमारा जो है नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट के ऊपर तो हमें कुछ देना नहीं पड़ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट तो सेम ही है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट मतलब कस्टमर को हम जितना जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट है, जो भी डिपॉजिट है, उसका कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आपका 182 डेज के अंदर हमारा बस ये वाला हुआ है, मतलब कमर्शियल पेपर के वजह से हमारा लोन का जो है उसका रिप्राइसिंग के वजह से इसका जो इंटरेस्ट रेट चेंजेस किया गया है, ठीक है। सो इसके वजह से हमारा जो है इंटरेस्ट वो भी चेंज हुआ, और जब इंटरेस्ट ऑन लोन भी चेंज होगा दैट मीन्स हमारा जो है फ्लो ऑफ इनकम और ड्यू टू द लोन्स वो भी इंक्रीज होगा। और वो ये जब इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया सिंपली कि अगर ये वाला बढ़ते जाएगा देन ऑब्वियसली नेट इनकम भी हमारा प्रैक्टिकली इंक्रीज हो रहा है। पर यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि अगर इंटरेस्ट इनकम हमारा बढ़ रहा है देन नेट इंटरेस्ट इनकम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो ये वाला सेम ही है, बस यहाँ पर देखिए और एक है, यहाँ पर आपको मैं जैसे बताया था, यहाँ पर आपका सेम क्वेश्चन है, बैंक इन्वेस्ट द फंड 182 डेज फ्लोटिंग रेट कमर्शियल पेपर एट 9% विथ मंथली रिप्राइसिंग देयर इज इंटरेस्ट रेट फॉल, ठीक है। सो आपको जैसे अभी मैं बताया था कि यहाँ पर जो रिप्राइसिंग वजह से किसको अफेक्ट कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन को, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो रहा है ना, चेंजेस किया जाएगा। सो ये भी आपका चेंज होगा, और कितने टाइम होगा 5 टाइम्स होगा। सो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है, इफ केस इज एंड देयर इज ये इंटरेस्ट रेट फॉल, दैट मीन्स ये जो लोन का इंटरेस्ट रेट था इसको डिक्रीज किया गया। पकड़ लीजिए यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट 9% है, कितना है यहाँ पर देखिए 9% है। सो यहाँ पर अगर 9% है तो इसको डिक्रीज किया गया 8% में। 9% में हमें मिल रहा था 100 रुपया, तो 8% में हमें ऑब्वियसली 80 रुपीज़ मिला, ठीक है। सो यहाँ पर कितना हो गया 20 रुपीज़ हमारा कम हो गया। सो इंटरेस्ट ये जो 20 रुपीज़ कम हो गया क्या है हमारा, हो इंटरेस्ट इनकम भी हमारा लो हो रहा है, ठीक है। सो जब इंटरेस्ट इनकम हमारा लो हो रहा है दैट मीन्स वही हमारा है ना नेट इंटरेस्ट इनकम भी दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट फॉल होगा देन वो भी अफेक्ट करेगा, दैट विल ऑल्सो डिक्रीज द नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आपको प्रैक्टिकल भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि हम पहले लिख देंगे इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द लोन दैट इज द डिपॉजिट, ठीक है। सो ये वाला अभी डिक्रीज होते ही जाएगा, जैसे कि पहले ये वाला था 5, ये था 2, सो माइनस कर रहे थे ये आ रहा था 3, सो ये वाला डिक्रीज हो गया 4 को, ये हो गया 2 है कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो रिप्राइसिंग वजह से जो डिपॉजिट है दैट विल बी नॉट अफेक्टेड, ओनली हमारा जो लोन है दैट विल बी ऑल्सो अफेक्टेड, ठीक है। सो ये 4 हो गया, यहाँ पर कितना है देखिए डिक्रीज हुआ -1 हो गया, सो 4 हो गया। सो यहाँ पर कितना हो गया देखिए कितना हो गया दैट इज 2, सो ये भी -1 हो गया। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम हमारा क्या हो रहा है दैट इज डिक्रीज हो रहा है, गॉट इट। सो NII विल डिक्रीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखिए, ये जो अभी हमारा हो रहा है ये नेट इंटरेस्ट इनकम को मतलब लोन को अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी हम देख सकते थे कि यहाँ पर भी लोन का जो है उसको अफेक्ट कर रहा है। सो जब हमारा एडवांसेस
जो भी हमारा एडवांसेस है या उसको जब अफेक्ट करेगा, तो उस टाइम जो बैंक है वो कौन सा सिचुएशन में होगा? उस टाइम जो बैंक है दैट विल बी इन लाइबिलिटी, सो दैट विल बी इन लाइबिलिटी सेंसिटिविटी। सॉरी, हमारा लोन्स क्या है? दैट इज हमारा एसेट है, ठीक है। सो यहाँ पर जब हमारा लोन को अफेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स हमारा एडवांस सेक्शन को अफेक्ट कर रहा है जो कि बैंक के लिए एसेट है। सो नाउ बैंक इज इन, बैंक को क्या बोला जाएगा उस सिचुएशन में? एसेट सेंसिटिविटी, ठीक है। क्योंकि ये रिप्राइसिंग की वजह से हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ लोन ऑन लोन है वो भी अफेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है दो कंडीशन है, एक केस में इंक्रीज हुआ है, एक केस में फॉल हुआ है। जिस केस में इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज हुआ है उस केस में हमारा इनकम जो है लोन से इंक्रीज भी हुआ है, दैट में। और कांस्टेंट है आपका डिपॉजिट्स, सो उस केस उसका कोई कंडीशन दिया नहीं गया है, दैट मीन्स वो भी डिपॉजिट कांस्टेंट है, क्योंकि रिप्राइस की वजह से ओनली लोन अफेक्ट होता है। सो जब हमारा इनकम इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है वहाँ पर हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम भी हमारा इंक्रीज हुआ है। कहाँ से? ये वाला एग्जाम्पल से आप नंबर थोड़ा डाल के पता कर सकते हैं, ठीक है। सो जब फॉल करता है तो उसी के साइमल्टेनियसली जितना फॉल करता है उतना ही साइमल्टेनियसली हमारा जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी फॉल कर रहा है, ठीक है। सो इस वाला सिचुएशन को हम बोल रहे हैं कि asset sensitivity. That means asset sensitivity is the situation when asset of bank is getting affected due to the different repricing. So next question ये देख सकते हैं, if बैंक इन्वेस्ट दिस फंड्स, ये जो फंड्स है, इन ए 3 ईयर टर्म लोन एट 9%। सो बैंक अभी फोर्थ केस में कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है? एक 3 ईयर टर्म लोन में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट विल बी impact on net interest income of the bank if there is increase in interest rate? सो दो केस है, फर्स्ट केस में हमारे बैंक कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? 3 ईयर टर्म लोन में। और यहाँ पर देखिए इफ देयर इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। सो यहाँ पर हो रहा है हमारा नेक्स्ट कंडीशन कि यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज किया जाएगा तो उस केस में हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे अफेक्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए बैंक क्या कर रहा है? टर्म लोन दे रहा है, ठीक है। सो 3 ईयर्स टर्म लोन में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो टर्म लोन को फंड करने के लिए, ये जो टर्म मतलब लोन जो दिए हैं उसको तो फंड करने के लिए बैंक को कहीं से फंड चाहिए ना। सो यहाँ पर ये जो 9% दे रहे हैं, सो यहाँ पर इसको एडजस्ट करने के लिए उनको जितना भी डिपॉजिट्स है उसको रोल ओवर करना होगा, ठीक है। सो रोल ओवर का मतलब ये है कि उसको रिन्यू करना होगा, ठीक है। दैट मीन्स जितना भी आपका डिपॉजिट्स है उसको आफ्टर 180 मतलब 6 मंथ के बाद या 182 डेज में उसको रोल ओवर करना होगा। सो दिस इज 182 डेज। देखिए सो इसको जो हमारा डिपॉजिट्स है उसको 182 डेज, दैट मीन्स आफ्टर 6 मंथ उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी चेंजेस करना होगा। सो इस केस में, और ये जो मेन हमारा चेंजेस हो रहा है क्यों हो रहा है? दैट मीन्स ओनली टू फंड दिस लोन, ठीक है। सो ये जो लोन हम दे रहे हैं इसको फंडिंग करने के लिए ये वाला जो है हमारा जो डिपॉजिट्स है उसका रोल ओवर दैट मीन्स रिन्यू किया जाएगा। सो इस केस में हमारा जो भी है डिपॉजिट्स का रेट जो हो रहा है थोड़ा ऊपर नीचे होगा, आइदर इंक्रीज किया जाएगा या डिक्रीज किया जाएगा, ठीक है। सो एटलीस्ट 1 टाइम तो होना ही है इस पीरियड ऑफ 182 डेज के बाद। सो नेक्स्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट रेट है, जो भी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो आइदर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सो डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो टर्म लोन है, टर्म लोन का जो भी इंटरेस्ट रेट है, सो यहाँ पर ये वाला कोई देयर इज नो चेंज, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन नो चेंज है। सो यहाँ पर ओनली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दैट विल बी अफेक्टेड, दैट विल बी चेंज्ड, दैट विल बी रोल्ड ओवर ड्यू टू द रोल ओवर ड्यू टू द रिन्यूअल, ठीक है। सो द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विल बी चेंज। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं NII हमारा जो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है। सो यहाँ पर बोला गया है कि इफ देयर इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, सो ये वाला तो हो गया हमारा कांस्टेंट, दैट मीन्स नो चेंज। सो ये वाला अभी हमारा पकड़ लीजिए 5 था और ये था 2, कितना आंसर आ रहा था? 3 आ रहा था।
अभी यहाँ पर बोला गया है कि इसको इंक्रीज किया जाएगा, दैट मीन्स जो सेकंड केस है, तो ये तो हमारा 5 ही रहेगा। सो ये वाला हमारा इंक्रीज किया गया, हम 3 को इंक्रीज कर देते हैं, एक इंक्रीज हो गया, सो 3 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 2। देखिए अगर डिपॉजिट ये वाला कांस्टेंट रह रहा है और आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये रोल ओवर की वजह से कंडीशन दिया है कि हमारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, सो उस केस में इसको जब हम इंक्रीज किए हैं 2 से 3 तक, सो उस केस में हमारा जो फाइनल NI है वो 2 में आ गया, यहाँ पर 3 में था और यहाँ पर 2 में आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा उतना ही जितना इंक्रीज किए हैं उतना ही कम हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो नेट इंटरेस्ट रेट है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो ये वाला जो केस है जहाँ पर हमारा डिपॉजिट मतलब क्या हो गया, जितना भी हमारा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है ये हमारा लायबिलिटी पार्ट है। सो इस केस में बैंक एजेंट कौन सा है, लायबिलिटी सेंसिटिविटी है। सो इस केस में अगर लायबिलिटी सेंसिटिविटी केस में जब हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कांस्टेंट रहता है, सो इस केस में रोल ओवर किया जाता है, इसको फंड करने के लिए जितना भी लोन है उसको फंड करने के लिए हमारा डिपॉजिट को रोल ओवर किया जाएगा अकॉर्डिंगली। जैसे कि अगर हमें चाहिए कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट, सो यहाँ पर क्या हुआ ना, ये जो रोल ओवर के टाइम हमारा जो यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। सो रोल ओवर टाइम डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट इंक्रीज भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, पर ये केस में आपका इंक्रीज़ किया गया है। सो यहाँ पर अगर हम नंबर देख लेंगे, अगर यहाँ पर इंक्रीज किया गया इंटरेस्ट रेट को, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो इनकम है, ठीक है, तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो भी हमारा इंक्रीज ही होगा। तो जितना हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सो इस केस में हमारा जो है नेट इंटरेस्ट इनकम, जो इंटरेस्ट इनकम हमारा कुछ नहीं है। सो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट मतलब हमें कस्टमर को ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर 3 हुआ, सो 3 रुपया देना पड़ रहा है, पर कॉस्ट ऑफ इनकम मतलब हमारा जो इंटरेस्ट इनकम है वो हमारा कांस्टेंट है। सो यहाँ पर नो इंटरेस्ट इनकम है। सो इस केस में ये वाला हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। होपफुली यू गॉट इट। सो यहाँ पर हमारा सिंपली आप ये वाला याद रखिए, यहाँ पर ये वाला अगर हुए देन अगर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हमारा इंक्रीज हो रहा है, देन ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट वो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो ये वाला अगर इंक्रीज होगा देन ये वाला आपका इंक्रीज हो रहा है। सो इस केस में जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं है, सो दैट्स कांस्टेंट, नो चेंज। सो यहाँ पर हम नंबर से देख सकते हैं, ये वाला 5 था एंड 2 था, जब ये 3 को इंक्रीज हुआ देन हमारा ये वाला जो 3 आ रहा था फाइनली NII वो वाला हो गया हमारा 2, ठीक है। सो दैट मीन्स ये डिक्रीज हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर जो है NII विल डिक्रीज, गॉट इट। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये उसी के बेस से बस सिंपली कंडीशन है कि जैसे कि वहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा था, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हमारा जो है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट वो भी डिक्रीज ही होगा। एंड इस केस में हमारा जो लोन्स है वो वाला नो चेंज, एंड लोन्स के ऊपर दैट मीन्स नो चेंज मतलब क्या है, हमारा जो इंटरेस्ट इनकम रहेगा हमारा फ्रॉम द लोन्स, दैट मीन्स वो भी हमारा नो चेंज रहेगा, दैट इज कांस्टेंट रहेगा। और नॉर्मली हमारा NII का मतलब क्या होता है, जो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द लोन्स एंड माइनस कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। सो इसको हम लोन्स लिख लेते हैं माइनस कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये 2 था, सो यहाँ पर ये 1 हुआ है, तो हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। NII कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, ये तो 5 रहेगा हमारा इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द लोन्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसको हमने क्या किए हैं, डिक्रीज कर लिए हैं, दैट मीन्स ये 1 हो गया है, इसको हमने 1 इनके डिक्रीज कर दिया, 1 हो गया है। सो इस केस में क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, देखिए यहाँ पर 3 आ रहा था, ये 4 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर +1 हो गया है, दैट मीन्स ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो इस केस में जब फॉल ऑफ इंटरेस्ट रेट होगा उस केस में ये आपका इंक्रीज होगा, गॉट इट। सो NII विल इंक्रीज। सो ये वाला केस को जैसे कि आपको पता है कि ये वाला इसके लिए हमारा जो डिपॉजिट है दैट्स गेटिंग अफेक्टेड, क्योंकि हमें रोल ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टर्म लोन लिया गया है ना, तो इसको फंड करने के लिए हमें इसको फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगा जो 3 ईयर्स के लिए। सो उस टाइम हमें 182 डेज में 182 डेज के बाद 182 डेज के बाद हमें इसको फंडिंग
जो लोन भी देंगे उसको फंडिंग लाएंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कुछ लाएंगे तभी तो हम फंड कर सकते हैं ना कस्टमर को। सो यहाँ पर 182 डेज के बाद हमारा जो है डिपॉजिट्स अकॉर्डिंगली हमारा रोल ओवर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो रोल ओवर के टाइम या रिन्यूअल के टाइम ये कंडीशन दिया गया है कि इंटरेस्ट रेट जो है फॉल किया गया है। सो अगर इंटरेस्ट हमारा कम हो गया है दैट मीन्स डिपॉजिट के ऊपर आपका इंटरेस्ट कम हो गया, दैट मीन्स हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो भी थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम हो जाएगा देन नेट हमारा जो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द लोन है उसके अकॉर्डिंगली जो प्रीवियसली आ रहा था उसके अकॉर्डिंगली जब नेट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कम होगा उस केस में, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स ऑल्सो हमारा कम हो रहा है, उसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हमारा डिक्रीज हो रहा है। सो उस केस में जो NII है नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी हमारा इंक्रीज होगा। कितना होगा, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वहाँ पर कम होगा ये उतना ही आपका इंक्रीज हो ही जाएगा। सो इस केस में जो आंसर है दैट इज NII विल इंक्रीज, ठीक है। सो यहाँ पर आप फाइनली इसको ये वाला कर सकते हैं समरी कि जब हमारा लाइबिलिटी सेंसिटिविटी रहता है दैट मीन्स हमारा जो लाइबिलिटी पार्ट दैट इज डिपॉजिट अफेक्ट होता है, दैट मीन्स ऑल द थिंग वन इम्पोर्टेंटली दैट इज इंटरेस्ट रिलेटेड टू द डिपॉजिट विल बी चेंज। सो दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट विल ऑल्सो बी चेंज। सो इन दैट केस द बैंक इज इन लाइबिलिटी सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी मीन्स दैट्स ऑल्सो विथ रेस्पेक्ट टू द फैक्टर्स द लाइबिलिटी पार्ट विल बी getting affected, that means it can be increased or it can be also decreased. So increase हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। सो इस केस में हमारा फर्स्ट केस में अगर इंटरेस्ट रेट राइज हो गया, मतलब ये लाइबिलिटी सेंसिटिविटी केस में अगर इंटरेस्ट रेट राइज हो गया, ठीक है। सो ये केस में हमारा जो NII है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं आपको नंबर के साथ भी बता दिया हूँ, उसको आप रेफर कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो गया सो NII क्या हो जाएगा, हमारा हाई हो जाएगा। सो नेक्स्ट है asset sensitivity means the asset part of the bank are very sensitive मतलब with respect to the scenario the interest related to the asset will be changed, ठीक है। सो जैसे कि प्राइसिंग हुआ था मंथली, सो इसके लिए हमारा जो एसेट का पार्ट है दैट मीन्स हमारा जो है जितना भी है लोन्स और एडवांसेस वो भी हमारा मंथली क्या हो रहा है, उसका जो है हमारा चेंजेस किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट में। सो उस मंथली जब हम रिप्राइसिंग की वजह से हमारा चेंज कर रहे हैं एसेट पार्ट का, अगर उस टाइम हमने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया सो उस टाइम हमारा क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सो यहाँ पर आपका केस 1 केस 2 दिया गया। अगर इंटरेस्ट पार्ट को इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम मतलब कस्टमर से हम जो लोन देते हैं तब हमारा कुछ इंटरेस्ट इनकम होता है। तो जब इंटरेस्ट इनकम बढ़ते जाएगा, हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमका इनकम भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। सो उस केस में हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। ये जो है उसका अपोजिट होगा। सो यहाँ पर है देखिए इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो रहा है, दैट मीन्स जो हमारा इंटरेस्ट रेट इनकम है वो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो जितना कम होते जाएगा उस टाइम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट देखिए कांस्टेंट है, आप इसको अज्यूम करना होगा क्योंकि एसेट सेंसिटिव मतलब ओनली एसेट पार्ट इज गेटिंग अफेक्टेड एंड ऑल द लायबिलिटी पार्ट इज गेटिंग कांस्टेंट। सो लायबिलिटी सेंसिटिव मीन्स लायबिलिटी पार्ट इज गेटिंग अफेक्टेड, एसेट पार्ट इज गेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। सो इस केस में जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होगा उस केस में हमारा जो NII है वो भी हमारा डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। सो लायबिलिटी पार्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, जब इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर हमने राइज कर दिए। आपको सिंपली एक बताता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल देके, जैसे कि हमारा एक FD है, ठीक है। सो FD का इंटरेस्ट हमारा 6% था। सो हम क्या है 10 रुपीज़ दे रहे थे, 10 रुपीज़ दे रहे थे FD में इंटरेस्ट। सो हमारा जो रोल ओवर किए मतलब रिन्यूअल किए उस टाइम हमने FD का इंटरेस्ट को क्या किया ना, ज़्यादा इंक्रीज कर लिया और 10 रुपया बढ़ा दिए, तो कितना हो गया 20 हो गया। सो जब हम FD वहाँ पर हम दे रहे थे, हमारा टोटल पकड़ लीजिए NII नेट इंटरेस्ट इनकम हमारा हो रहा था 20 रुपया। सो वहाँ पर हमने 10 रुपया दे दिए तो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम कहाँ पर 10 रुपये ही कम हो जाएगा। जितना हम FD डिपॉजिट में कस्टमर को पैसा दे देंगे उतना ही हमारा नेट इंटरेस्ट हम अपना इनकम लेवल से अपना जो है एसेट पार्ट उस चीज़ को निकल के ही दिए ना, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर देखिए क्या हुआ, डाउन हो गया। सो गॉट इट। सो जब FD का इंटरेस्ट 10 रुपया था और उसको हमने 5 रुपये कर दिया, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट हम चेंज किए और ये वाला जो है हम 5 रुपये कस्टमर को दे रहे हैं। तो उस टाइम देखिए हम जो 5 रुपये दे रहे हैं मतलब क्या, हमारा फंडिंग से हमारे पास कितना था 20 रुपया है और उससे हमने टोटली दे रहे थे 10 रुपया और अभी हमने 5 रुपये दे रहे हैं। दैट मीन्स और जो 5 रुपया हम दे रहे थे पहले से वो वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर NII क्या हो जाएगा 25। सो ये वाला क्या हुआ,
इंक्रीज हुआ। सो आप ऐसे ही प्रैक्टिकल रिलेटेड करके इसको अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेट इंटरेस्ट इनकम। सो इफ पॉसिबल देन आई विल ऑल्सो ब्रिंग अनदर केस स्टडी रिगार्डिंग ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके ये जो आपको है यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है एंड कोई कोई केस स्टडी भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट को जान के रखिए सो दैट योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी बूस्टेड, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फिर मिलते हैं एक न्यू अपकमिंग सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग।